8 مارچ خواتین کا عالمی دن جہاں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، وہیں میرپور آزاد کشمیر میں بھی مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مقامی ہوٹل میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی مرکزی رہنما محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ کی جانب سے خواتین کے اعزاز میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں تقریب کی جانب۔ دنیا کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں کوئی خواتین جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی؟ اس لیے میری محترم بہنیں جو یہاں پہ تشریف فرمائے، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ ہمیں برابری کا رتبہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ رتبہ چاہیے جو ہمارے اسلام نے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ، ہمارے دین میں فرمایا گیا کہ آپ جو ہیں بحیثیت ماں ایک اونچے درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے بچے جو ہیں ان کے لیے آپ ایک بنیادی، ایک پیوٹل پوائنٹ ہیں، ایک مرکزیت قائم رکھنے والا کردار ہے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، وہ گھر تباہ نہیں ہوتے جہاں پہ ایک ماں زندہ سلامت موجود ہوتی ہے، ہمیشہ وہ گھر سلامت رہتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم تمام خواتین یہاں پر موجود ہیں۔ میں اس پر اس کا سہرا میری محترم بہن نبیلہ ایوب خان ایڈوکیٹ صاحبہ کو جاتا ہے کہ آپ نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کرتے ہوئے اپنی محنت، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی اور اپنی دیانتداری اور خواتین کے لیے مخلص نیت کا بہترین ثبوت دیا ہے۔ میں آپ کو اور بالخصوص اور جملہ اباب کی جانب سے بالعموم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں آج اس خوبصورت تقریب کے موقع پر معزز خواتین، ہماری مہمان محترمہ نعید طارق صاحبہ، صبیہ صاحبہ، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما میری معزز بہنیں، اس پنڈال میں تشریف فرما ہماری معزز خواتین مہمان بہنیں اور میڈیا کے نمائندگان، دیگر جو لوگ اس تقریب میں شامل ہیں، آپ سب کو آمد پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں سب سے پہلے قوم کی ہر بیٹی کو، قوم کی ماں کو، قوم کی بہن کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مجھ سے پیشرو مقررین نے بڑے خوبصورت اور مدلل انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں اسی کو آن کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے دین اسلام سے لے کر آج تک خواتین کا رول تاریخ کے اندر میں بھی بڑا واضح رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر دیکھ لیں، محترمہ بیگم رانا لیاقت علی خان سے دیکھ لیں، محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے دیکھ لیں، اور پھر وہ ایشیا کی عظیم لیڈر، میری قائد، ہم سب کی قائد، اس قوم کی بیٹی، وہ دلیر بیٹی، وہ عظیم خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جس خوبصورت انداز میں نہ صرف ملک اور قوم کی نمائندگی کی، بلکہ میں سمجھتی ہوں ہر غریب کے لیے، ہر مزدور کے لیے، ہر بے کس کے لیے، ہر بے یار و مددگار کے لیے، ہر خاتون کے لیے اس معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ عظیم مائیں ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے شہداء کو پیدا کرتی ہیں، جو بڑے بڑے عظیم سپوت پیدا کرتی ہیں، وہ عظیم مائیں ہوتی ہیں۔ اور خاتون کا کردار چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، میں سمجھتی ہوں کہ ایک نمایاں کردار ہے۔ اور آج ہم سب اپنے قائد کی تقلید کرتے ہوئے جو میری رول ماڈل بھی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم نے زندگی کے ہر شعبہ میں، آج آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں کہ ہر جگہ خواتین نے ہر شعبہ کے اندر نمایاں کردار ادا کیا ہے اور انتہائی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آج اس عزم کا ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے خول کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے کردار کے
के साथ काम करेंगे। हम अपने आप को आगे लेके आने के लिए हमें खुद को क्रिटिसाइज करना होगा। जब रात को सोने से पहले हम सिर्फ इतना सोचें, आज दिन को हमने किसके लिए हसद महसूस किया, हमने किसके बारे में बुरा सोचा, हमने किसके बारे में बुरा बोला। तो मेरे ख्याल में घरों में जो छोटे छोटे मसलों से सोसाइटी शुरू होती है और वो बढ़ते 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 ऊपर तक पहुंच जाती है। हमारे लिए रोल मॉडल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी, बेशुमार नाम जो जिनकी तस्वीर भी इधर लगी हुई हैं, अगर मैं नाम गिनवाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में शाम यही हो जाएगी कि कितनी ख़वातीन हैं जो बाकरदार और बामकसद तरीके से जिन्होंने अपने आप को बनवाया। ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को बनवाया बल्कि हमारे लिए भी राहें खोली, हमारे लिए भी रास्तों का तयन किया। मुझे बहुत खुशी है आज, ये सच्ची बात है कि इतना देख के कि इतनी बच्चियां जो एडवोकेट हैं जो यहाँ काम कर रही हैं और उनकी अपनी सलाहियतें जो हैं वो उजागर हो रही हैं यहाँ भी और अदालतों में के अंदर भी। जिस ज़माने में हम लोग यहाँ आए थे उस वक्त अभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि ख़वातीन जो है वो इस तरह से खुले बंदूक काम करती हैं। मेरे साथ कोई 5 लोग थे असातिज़ा में से और एक मैं, तो हमने कोई 2 साल तक सिर्फ 10 बच्चियों को पढ़ाया। लोग जो है वो कॉलेज में लड़कियां भेजने को, उनको पढ़ाने को इतने भी तैयार ही नहीं थे। और 2 साल के बाद फिर ख्वाजा मीर मुमताज़ ने जो बच्चियाँ कॉलेज बॉयज़ कॉलेज में पढ़ती थी वो ला के हमारे दाखिल की और कुछ तादाद बढ़ी। तो इस तरह से ये मुझे मतलब है ये सारा, क्योंकि मैं उस माहौल से गुज़र के आज देख रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बच्चियों की सलाहियतें और इसके अलावा इनके अंदर तालीम का, तरबियत का जो मयार है उसके हवाले से। और ख़वातीन जो कि किसी भी माशरे की तरक्की का नागज़ीर हिस्सा हैं, और वो ख़वातीन अगर माशरे में अपना हिस्सा ना डालें तो कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अभी आपको तारुफ करवाया, मुझसे पहले सारी एडवोकेट्स बोली और अच्छा बोली, लेकिन आप में से किसी माँ को भी गुफ्तगू करनी चाहिए थी। नीचे से भी आके आप में से भी कोई यहाँ बात कर सकती थी ख़वातीन के हवाले से, उनको दरपेश मसाइल के हवाले से, उनके हुकूक़ फ़राइज़ के हवाले से। और सच तो ये है कि इस्लाम के हवाले से कंप्लीट बात कर दी मेरी एडवोकेट बहनों ने कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है और इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए भी उसने एक ज़ाब्ता-ए-याद दे दिया। और इस दुनिया में उसने जब इंसान को पैदा किया तो मर्द और औरत को पैदा किया, और मर्द और औरत को पैदा किया तो 1400 साल पहले रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि जो है ना आखिरी नबी हैं, और जो वो निज़ाम-ए-हयात लाए वो ता क़यामत तक निज़ाम-ए-हयात है कि ना अल्लाह ने कोई पैगंबर भेजना है और ना ही कोई किताब भेजनी है, ना ही कोई ज़ाब्ता-ए-हयात बताना है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी दे। तो वो हम औरतों के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है। बड़ी खूबसूरत बातें की यहाँ पे ख़वातीन ने, यहाँ पे एडवोकेट्स ने, कि उस ज़ाब्ता-ए-हयात के मुताबिक अगर एक फैमिली, अगर एक माँ उस घर के अंदर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत इस्लाम के बताए हुए ज़ाब्ता-ए-हयात, इस्लाम के बताए हुए हदूद और क़ुयूद के अंदर अपने बच्चों की तरबियत करती है, तो आप देखें कि एक माशरे में कितने घर हैं और वो कितने घर मिल के माशरा बनते हैं, और वो माशरा आगे से कौम बनता है। तो अगर वो इस्लाम के मुताबिक जो है ना वो सारे हकूक़ औरत को इस्लाम ने दे दिए, अब अगर औरत को इस्लाम ने सारे हकूक़ दे दिए तो फिर क्या वजह है कि जो है ना औरत आज परेशान है। पूरा कर दिया मेरे भाई, अल्लाह ताला सबका वकील को सबका फतवा छोड़ा में जब काम करने की तौफीक है, तो किस के खिलाफ करने की तौफीक अदा दी, हकीकत से काम करने की तौफीक हमें अल्लाह का कैसे छूटता न जाए। आपको यहाँ बुलाने का मकसद, आपसे यहाँ बात करने का मकसद, आपको यहाँ इकट्ठा करने का मकसद सब बयान करूंगी। मोहतरमा नाइब तारक की बात से इब्तिदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ आप में से किसी को दावत नहीं दी गई खिताब के लिए। मैं ये गुजारिश करती चलूं कि मैं नबीला अयूब खान एडवोकेट एक पसमानदा
घर से, एक पसमानदा तरीन गांव से ताल्लुक रखती हूँ जो इन सब की नुमाइंदगी के लिए यहाँ खड़ी हूँ। मैं मोहतरमा नबीला अयूब खान एडवोकेट, पेशाए वकालत से मुंसलिक हूँ, इन सब की नुमाइंदगी के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैं नबीला अयूब खान एडवोकेट सियासत से मुंसलिक हूँ, इन सब के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ और माशरती लिहाज से माशरे में मौजूद तमाम नाहमारियों से, तमाम नाइंसाफियों से, तमाम औरतों के उन हकूक के हुसूल के लिए जदोजहद कर रही हूँ। इसलिए आज के दिन आपको यहाँ इकट्ठा किया। 8 मार्च का दिन मोहतरमा सवारा नौरीन साहिबा ने बहुत खूबसूरत बातें की। कहा कि ये जो वुमेन इंटरनेशनल डे जिसे आज आलमी दुनिया वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत पहले ज़माना जहालियत में जब औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जब औरतों को उनको माशरे में कोई मकाम नहीं दिया जाता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को माँ, बेटी, बीवी और बहू हर रूप में, हर रिश्ते में अहमियत दी। औरतों की अहमियत, औरतों की उनके किरदार, उनके शऊर, उनको माशरे में नमाया मकाम देने के लिए आज वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने 1975 से, मैं प्रेस क्लब में इसके बाद तकरीब है, डिटेल से बात करूंगी इस टॉपिक पे। इस वक्त सिर्फ मैं अपनी बहनों से मुखातब हूँ और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हर रिश्ते में मोहतरम, हर बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, हर रिश्ते में आप मर्दों से पे आप फोकियत रखती हैं और साल के 365 दिन आप जो है उनमें से एक दिन आज यहाँ अपने लिए निकाल सके। इसलिए आपको यहाँ बुलाया, इसलिए आपको तकलीफ दी कि आप अपने आप को पहचान सकें कि आपका कोई मकाम है, आपकी कोई हैसियत है। और जो वर्किंग लेडी है वही माशरे में मकाम नहीं रखती। मैंने कोशिश की कि जिंदगी के हर शोबे से एक घरेलू खातून से लेके एक असेंबली में बैठने वाली खातून को आपके दरमियान बैठाऊं, ताकि किसी में कोई तफरका ना रहे। और मैं जो घर में काम करने वाली, जो पूरा दिन बिला किसी तनख्वाह के मजदूरी करती हैं, सुबह नमाज के टाइम पे उठती हैं और फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, घर का झाड़ू लगाती हैं, खाना बनाती हैं, वो मेरे लिए ज्यादा अहमियत की अमल है। और आज के दिन आपको बुलाने का मकसद भी यही था कि मैं आपसे ये अर्ज कर सकूं कि आपकी अहमियत, आप हमारी नजर में बहुत मोहतरम है। और जनाब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिसने आपके हकूक़ के लिए अपनी जान जो है वो लियाकत बाग के अंदर उनको खून में नहला दिया गया। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर यही था कि वो औरतों के हकूक़ के लिए जदोजहद करती थी। वो एशिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में बरसरे पैकार थी। उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हमारी बहनों की इस्मतदारी कर रहे हैं, हमारे बहनों के हकूक़ को गज़ब कर रहे हैं। और उनमें से आधी से ज्यादा हाफ विडोज की जिंदगी गुजार रही हैं। हाफ विडोज जिनको अपने खामदों का पता नहीं है कि आया वो बेवा है भी या उनके खामद जिंदा हैं। और बॉर्डर लाइन पे जिस तरह से भारतीय फौज ने दहशतगर्दी शुरू कर रखी है, उन माओं के लखते जिगर को शहीद किया जा रहा है। उनके लिए भी, उनके साथ हज़ार यकजहती के लिए भी मैंने आपको बुलाया है। और उस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए जो दुनिया में रहते हुए तो आपके लिए काम कर गई, लेकिन मरकर भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में आपके घरों में जिंदा है। और मैं ये कहती हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ, आपको भी
किसी के खौफ से पीछे ना हटें, क्योंकि जिंदगी दरिया है एक बहता हुआ, जिंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं, और हिम्मत हो अगर इंसान में मुश्किलों के सामने झुकता नहीं। और मीरपुर के इन ख्वातीन को, मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन को यहाँ आपके सामने बैठाने का मकसद इनकी तकारीर नहीं थी। मोहतरमा नाहिद तारिक साहिबा को मेरा एक अलग सियासी जमात से ताल्लुक, लेकिन उनकी खिदमत, उनकी ख्वातीन के हकूक़ के लिए जदोजहद थी। आज मैं ख्वातीन के दिन पे उनको न दावत देती तो मेरा ख्वातीन का आलमी दिन बनाने का मकसद अधूरा रह जाता। मैं मोहतरमा सफिया अकरम साहिबा, क्योंकि तालीम ही इंसान को शऊर देती है, आज जो मैं इस स्टेज से बोल रही हूँ इन्हीं का दिया हुआ शऊर है, और मैं अगर इनको यहाँ ना बुलाती तो मैं आलमी दिन ना बना पाती। मैं मोहतरमा नसीम फातिमा साहिबा जो अकाब स्कूल की पायनियर हैं, जिन्होंने अकाब स्कूल की बुनियाद रखी। अकाब स्कूल से आप सारे लोग वाकिफ हैं कि नाबीना बच्चों के लिए वो स्कूल खोला गया है, बाकी सबके लिए तो लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा जो ये कोई कमी नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए ये एक इदारा खोल के हमारे लिए मशलेरा साबित हुई। और मोहतरमा, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन पे बहुत बातें हुई, सबने इन तस्वीर को मोहतरमा नाहिद तारिक साहब ने बयान किया। मेरा ये दिल था कि मैं मीरपुर में रहने वाली उन ख्वातीन को आपके सामने मुतारफ करवा सकूं। मोहतरमा परवीन रहमानी साहिबा समाजी हल्के में काम करती हैं, और इन्होंने माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए डस्टबिन सर्विस मीरपुर के अंदर शुरू की। उनकी उस खिदमत का एतराफ़ न करूं तो ये भी उनके साथ ज्यादती होगी। आइंदा भी ख्वातीन के प्रोग्राम में इसी तरह शामिल हूं ताकि ख्वातीन माशरे में अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सके। मैं इसी पर इजाज़त चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाला से पीपल्स पार्टी की मर्सी रहनुमा नबीला अयूब एडवोकेट की जानिब से परोकार तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें ख़वातीन को मुख्तलिफ जो हैं वो यहाँ पर सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए और ख़वातीन के हवाला से, उनके हकूक़ के हवाले से यहाँ पर बातचीत हुई। और यहाँ पर उन ख़वातीन को जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई उनके इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।